हेलो एवरीवन, आई एम सी ए देवेंद्र कटारिया एंड यू आर वाचिंग अकाउंटिंग अड्डा। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और वीडियो विच इज़ अबाउट द प्रपोज्ड चेंजेस इन जीएसटी लॉ बाय द फाइनेंस बजट 2021, जो हाल ही में 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है पार्लियामेंट में। In her budget speech, she just took 10 to 12 minutes for the entire direct tax and indirect tax proposals. जब हमने फाइनेंस बिल को स्टडी किया तो इन डायरेक्ट टैक्सेस में देर आर वास्ट चेंजेस एंड देर आर हेवी चेंजेस इन जीएसटी एज वेल, जिनका जिक्र तक नहीं हुआ उनकी बजट स्पीच में। So here we are and we are presenting a video for you on the budget changes on GST. Let us start. The very first and important change in GST has been done in section 7. आपको याद होगा, section 7 is related to scope of supply. In section 7 subsection 1 clause A says that supply includes all forms of supply such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, license, disposal made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of a business. तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आ जाती हैं। एक तो ये कि देयर शुड बी एन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। Second condition is it should be for a consideration, and the third important condition is it should be in the course or furtherance of business. Now, a clause double A has been inserted, and this clause, my dear friends, has been inserted from 1st of July 2017. मतलब ये कहा गया है कि ये क्लॉज जीएसटी स्टार्ट होने के साथ ही लॉ में था, ऐसा माना जाएगा। And what this clause says, it says that the activities or transactions by a person other than individual to its members or constituents or vice versa for cash deferred payment or other valuable consideration. मतलब now this transaction is also supply. Recently सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कैलकाटा क्लब लिमिटेड का, wherein the Supreme Court has clearly ruled that doctrine of mutuality holds good in GST as well. Due to a reason, one person cannot supply goods or services to himself, and therefore GST levy was failing on associations and clubs when the services or goods were supplied to its members. हालांकि इंटेंशन ऑफ द लॉ एंड द गवर्नमेंट फ्रॉम डे वन वाज क्लियर कि वो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को टैक्स करना चाहते हैं, बट द ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ वाज इन सच अ मैनर कि वो ट्रांजैक्शंस कैप्चर नहीं हो पा रहे थे। In the definition business, in the definition of term business, they had mentioned कि अगर कोई unincorporated body अपने members को services देती है या goods देती है तो वो business की definition में आता है। वो business की definition में तो आ रहा था, लेकिन supply के scope में नहीं आ रहा था। But with this amendment, that transaction of a club or an association with its members or vice versa has been duly captured. And not just captured with effect from 1st of July 2017. और इस क्लॉज के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने इंसर्ट किया है, वेयर बाय ऑल द जजमेंट्स, ऑर्डर्स और एनी अदर लॉ हैज बीन नलिफाइड। What are they saying? For the purposes of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, दुनिया जहां की सारी पावर इस सेक्शन, इस क्लॉज को दे दी गई है, इट इज ओवरराइडिंग एवरीथिंग अदर देन दिस। एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी, उन सबको ओवरराइड करके ये एक्सप्लेनेशन बताता है दैट द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one person to another.
meaning thereby all the associations, clubs who were till now taking benefit of anomalies in the law कि supply में ये capture नहीं हो पा रहा है, one person cannot provide services or cannot supply goods or services to himself, that benefit has been withdrawn, and not just withdrawn from 1st of July 2017. There were also pending cases regarding these कि there were और अगर वो close हो चुके हैं तो now there is a power with the department that they can reopen those cases and they can go for revision of the orders subject to the time limit as prescribed in the law. So अगर आप किसी एसोसिएशन में मेंबर हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपकी मेंबरशिप फीस बहुत जल्द बढ़ने वाली है बिकॉज जीएसटी इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन दोज मेंबरशिप फीस. और अगर आपका कोई केस कंक्लूड हो चुका है तो गेट रेडी दैट यू विल बी रिसीविंग सम रिविजन नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेरी सून. This clause and this explanation have been inserted in the law retrospectively, with the retrospect effect say 1st July 2017 say they have been inserted. They have given a retrospective effect to this clause. And there was schedule 2 para 7 which used to say that supply of goods from by any unincorporated association of body or persons to its members shall be treated as supply of goods. But now what was the value of schedule 2? Schedule 2 only tells us whether a transaction, if it is a supply as per section 7.1, it is a supply of goods or supply of service. And this para 7 of schedule 2 was trying to tell the intention of the law that we are trying to capture these transactions of association and members as supply of goods or services. But schedule 2 had lost its power way back. और इसीलिए this entry was of no use, and now since section 7 has been duly amended, this entry was not required anymore and has been omitted. Next important change in this current budget is in section 16. Section 16 आप सबको याद होगा. Section 16 tells us about the eligibility of ITC. और सेक्शन 16(2) में 4 कंडीशंस थी जिससे ये पता चलता था कि आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं. जिसमें सबसे पहली कंडीशन थी दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शुड बी इन पोजेशन ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड. सेकेंड कंडीशन थी कि he has received the goods or services. Third condition was that the supplier has made payment. And fourth condition was that the recipient who intends to take the ITC has filed return under section 39. With this current budget, another condition has been added. What does it say? It says that the details of invoice or debit note, जो हम clause A में बात कर रहे थे, that he is in possession of a tax invoice or a debit note, वो tax invoice या debit note, the details of that invoice or debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies, and such details have been communicated to the recipient of such invoice. क्या मतलब? सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया है और सही फाइल किया है, आपका GST उसने सही उसमें मेंशन किया है, आपके 2A में वो इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ये अब एक कंपल्सरी कंडीशन है एज पर लॉ और अब हम नहीं बच सकते. नाउ वी हैव टू अदर टू दिस कंडीशन क्योंकि दिस इज नाउ पार्ट ऑफ सेक्शन 16. अभी तक कोई भी डिस्कशन होता था तो हम यही कहते थे दैट GSTR 2A इज नॉट कवर्ड एनीवेयर इन द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 16. एंड देयरफॉर अगर कोई इनवॉइस GSTR 2A में नहीं भी आ रहा है, but you have a legitimate purchase, you have a legitimate inward supply on which you have paid the tax, supplier has paid the tax, you have filed the return, then you are eligible for ITC. But now
the direction of the discussion has been changed. And this condition is part of section 16 subsection 2 और compulsorily पांचवी condition ये है कि GSTR 2A में वो details reflect होनी चाहिए. ठीक है. Now ये किस दिन से implement होगा, उसके लिए एक नोटिफिकेशन द्वारा डेट अपॉइंट की जाएगी जिस दिन से ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए will come into effect. Then another major change in GST is that section 35(5) जो बात करता था about getting the books of accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant. It used to say every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit, which was 2 crores. And for financial year 18-19 and 19-20, it was enhanced to 5 crores. उनको कंपलसरी ऑडिट करानी थी और एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइल करना होता था. बट नाउ दिस जीएसटी ऑडिट हैज बीन ओमिटेड. अगेन दिस सेक्शन ये कब से इंप्लीमेंट होगा, फ्रॉम विच डेट इट विल बी मेड इफेक्टिव, the government will let us know by way of a notification. Meanwhile, financial year 19-20 की due date GST audit की soon approaching, so we should all at least complete the task which is there in our hand, and let's hope for the best. As a chartered accountant, I do have a mixed feeling about this removal of GST audit. There are two aspects to the situation. One, there is a slight revenue loss, but second, there is a sign of relief कि GST audit, as an auditor also, there was a huge liability on the auditors as well, that you were certifying the audited the accounts of the registered person and giving a certificate that the books of accounts are true and fair. Or later on, if a scam or fraud is found, the allegations are made on the chartered accountant or the cost accountant as well, that you have not done your work properly. But now that liability has been done away with, and now we have a sign of relief कि अब हम कम से कम अपनी litigation हम अपनी consultancy ठीक से कर सकते हैं, and we can make compliances on the best part. GST audit is not our problem now. With this, GST audit has been abolished. Section 44 has also been amended. Section 44 is about annual return. Every registered person has to file an annual return except a few. जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, सेक्शन 51 में TDS जिनको काटना है वो हैं, 52 में TCS है जो टैक्स कलेक्टर हैं, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. इनके अलावा जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं सबको एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, विच इज GSTR 9. And now in this section 44 they have amended that along with annual return you have to file, which may include a self certified reconciliation statement. मतलब GST ऑडिट तो खत्म हो गई, GST ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट खत्म हो गई, GST ऑडिट बाय डिपार्टमेंट वही है एज इट इज, वो अभी भी होगी. 9C खत्म नहीं हुआ है. 9C अब आपको 9 के साथ सबमिट करना पड़ेगा. द ओनली डिफरेंस नाउ इज CA से सर्टिफाई कराने की जगह पर आपको इसको सेल्फ सर्टिफाई करना है. ठीक है, और ये आपको आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के साथ अपलोड करना पड़ेगा. इसमें भी देयर विल बी अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट की इस लिमिट इस एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर जो लोग हैं उन्हीं को 9C फाइल करना होगा. बट नाउ द लाइबिलिटी, द बर्डन इज एंटायरली ऑन द टैक्स पेयर टू प्रूव इट्स जेन्युइननेस. ओके, देयर आर सम प्रोविजोस इन द सेक्शन 44 एज वेल. इसमें इन्होंने कमिश्नर के पास एक पावर दी है that the commissioner may exempt certain class of persons from filing GSTR 9, provided that the commissioner may, on the recommendations of the council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section. जो अभी तक भी हमने देखा है सेक्शन फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 या 19-20 के लिए
रजिस्टर्ड पर्सन्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनको जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको एक रिलीफ प्रोवाइड की गई है। सिमिलर रिलीफ कैन ऑल्सो बी गिवन इन फ्यूचर एंड द पावर नाउ वेस्ट विद द कमिश्नर। इसके अलावा सेक्शन 35(5) जो कि जीएसटी ऑडिट का है, जो ओमिट कर दिया गया है, उसमें एक प्रोवाइजो था। उसमें ये प्रोवाइजो था कि जीएसटी ऑडिट के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू एन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ लोकल अथॉरिटी। दैट प्रोवाइजो हैज बीन बोरोड हेयर, वहां खत्म हो गया, यहां पे इसको इंक्लूड कर लिया गया और यहां पे वही सेम लैंग्वेज हैज बीन इंसर्टेड दैट this provision is not applicable on any department of central or state government. ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 50, इसमें लैंग्वेज में कुछ भी नया ऐड नहीं है। दिस प्रोवाइजो वाज एडेड इन लास्ट ईयर फाइनेंस बजट 2020 and this was made effective from 1st of September, wherein it was said कि interest will be applicable on the component which is paid through cash ledger। जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आपका पेमेंट हुआ है जीएसटीआर 3B का ड्यू टैक्स का, सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी, एक्सेप्ट अगर आपके अगेंस्ट 73 या 74 दैट इज शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स या आईटीसी रॉन्ग अवेलमेंट का अगर आपके पास कोई केस है और वो इनिशिएट हो गया है, उसके बाद अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट इज द लैंग्वेज? प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of proceedings under 73 or 74, ठीक है, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger. The same proviso was inserted last year by Finance Act 2020 in section 50. And this was made effective from 1st of September. इस बजट में क्या किया? इस बजट में ये किया कि भैया ये 1 सितंबर की जगह 1 जुलाई 2017 से ही एप्लीकेबल कर दिया है, इसको भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है और ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। सो नाउ अ वेलकम स्टेप, बट लास्ट ईयर तक यही कंफ्यूजन था कि अगर 1 सितंबर के बाद ये प्रोविजन एप्लीकेबल है तो इसके पहले क्या ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, ग्रॉस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी। बट विद दिस फाइनेंस बजट, विद दिस फाइनेंस बिल, all the confusions have been cleared and it is said that this provision is applicable from 1st July 17। और भी बहुत सारे चेंजेस इस बजट में आए हैं, लेट अस सी। What is section 74 all about? Let me give you a brief of that. Section 73 and 74 are the sections which cover demands and recovery. In case if there is a tax short paid or not paid, or there is ITC wrongly availed, or there is an erroneous refund. अगर आपको याद हो तो जो पहले सर्विस टैक्स में सेक्शन 76 और 78 हुआ करते थे, वो अब सीजीएसटी में सेक्शन 73 और 74 है। दैट मीन्स अगर टैक्स शॉर्ट पेड या नॉट पेड आर ड्यू टू रीजंस अदर देन फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, तो सेक्शन 73 लगता है। इफ द टैक्स शॉर्ट पेड और नॉट पेड इज ड्यू टू रीजंस ऑफ फ्रॉड और मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन, तो सेक्शन 74 लगता है, ठीक है। एंड देयर वाज एन एक्सप्लेनेशन आफ्टर सेक्शन 74 कि 73 और 74 दोनों के लिए क्या है एप्लीकेशन। अगर 73 और 74 में प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाती हैं तो सेक्शन 122, 125, 129 एंड 130 की प्रोसीडिंग्स भी कंक्लूड मान ली जाएंगी। एंड दिस प्रोविजन, दिस एक्सप्लेनेशन वाज यूज्ड very nicely in proceedings of section 129.
अगर ई वे बिल की कोई प्रोसीडिंग्स चालू होती हैं और टैक्स पेयर जाके 74 में टैक्स एंड 15% पेनल्टी जमा करा देता है तो 129 की प्रोसीडिंग्स वहीं खत्म हो जाती थी. The benefit was taken by various taxpayers in this case, but now that benefit has been done away with. और यहां से इस एक्सप्लेनेशन से सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 हैज बीन ओमिटेड. तो इसका मतलब अगर 73 या 74 में प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाती हैं तो ये माना जाएगा 125 और 122 की प्रोसीडिंग्स भी कंप्लीट हो गई, 129 और 130 की प्रोसीडिंग्स एज इट इज चलेंगी. देयर इज नो चेंज इन दैट. Okay, I hope the concept is clear. In case if you have any doubt, please feel free to write in the comments, or you can mail us. The mail ID is provided in the comments as well, and we will be very glad to reply to you. Next, there is a section 75 which talks about general provisions relating to determination of tax. इसमें सबसेक्शन 12 है, वो क्या कहता है? It says notwithstanding anything contained in 73 और 74. मतलब 73, 74 ये कहते हैं कि आपको शो कॉज नोटिस देना है, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, उसके बाद ऑर्डर निकालना है. तो ये चीज उसको ओवरराइड कर रही है. क्या कह रहे हैं? अगर कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स अगर कोई आपका अनपेड रह जाता है, सेक्शन 39 में हम कौन सा रिटर्न फाइल कर रहे हैं? सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल कर रहे हैं 3B, राइट? और 3B में कह रहे हैं कि अगर 3B में आपका कोई टैक्स अनपेड रह जाता है, आप लोग सोचेंगे कि बिना कंप्लीट टैक्स पेमेंट के तो 3B फाइल ही नहीं हो सकता, तो टैक्स में अनपेड कैसे रह गया? इस प्रोविजन की वजह से हम लोग ये कहते थे कि भैया पोर्टल इज डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लॉ. इससे पता चलता है कि विदाउट इवन फुल पेमेंट ऑफ टैक्स वी शुड बी एबल टू फाइल 3B, बट एक्चुअली वी आर नॉट. एंड नाउ विद दिस बजट एन एक्सप्लेनेशन हैज बीन इंसर्टेड. ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या इंसर्ट हुआ है? सेल्फ असेस टैक्स को यहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन the expression self-assessed tax shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37 but not included in the return furnished under 39. मतलब अगर आपने GSTR 1 में 10 लाख की टैक्स लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर दी और सेक्शन 39 में सिर्फ 3 लाख की ही की, तो जो रिमेनिंग 7 lakhs है दैट इज ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स एंड इट कैन बी रिकवर्ड एज पर सेक्शन 79. उसके लिए डायरेक्टली आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती हैं अंडर सेक्शन 79 विदाउट इवन गिविंग यू अ शो कॉज नोटिस. ठीक है, चलिए. देन वी हैव सेक्शन 83. सेक्शन 83 में प्रोविजनल अटैचमेंट की पावर है कुछ केसेस में. इसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स हुए हैं. क्या हुआ है? पहले कुछ सेक्शंस मेंशन थे दैट इफ द प्रोसीडिंग्स वर पेंडिंग अंडर सेक्शन 63 और 64 और 62 और 67 और 73 और 74, तो कमिश्नर में अटैच द प्रॉपर्टी ऑन अ प्रोविजनल बेसिस इफ ही थिंक्स कि ये इंटरेस्ट है, सॉरी ये रेवेन्यू के इंटरेस्ट में है. अब वहां पे क्या अमेंडमेंट किया है? इस सेक्शंस को हटा के चैप्टर्स का नाम लिख दिया है. जैसे अभी जस्ट हमने देखा कि 79 में रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं अगर सेल्फ असेस टैक्स इज अनपेड. नाउ व्हाट दे हैव डन where after the initiation of any proceedings under chapter 12 is related to assessments, जहां पे सेक्शन 62, 63 और 64 थे. चैप्टर 14 इज फॉर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, जिसमें सिर्फ सेक्शन 67 था. अब पूरा चैप्टर इंक्लूड उन्होंने कर लिया है. एंड चैप्टर 15 विच इज डिमांड्स एंड रिकवरी, जहां पे सेक्शन 79 भी अब इंक्लूड हो गया है, जहां पे पहले 73 और 74 ही इंक्लूडेड था.
बट नाउ द एंटायर चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड, और इस पूरे चैप्टर में कहीं भी अगर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, इनिशिएट हो गई हैं, then the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of revenue, it is necessary so to do. He may by order in writing attach provisionally any property including bank account. किसका? जिसके ऊपर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं उसका, या फिर उस व्यक्ति का जो सेक्शन 122(1)(a में मेंशन किया हुआ है. Now the section 122(1)(a was inserted last year by Finance Act 2020, and what does it says? It says any person who retains the benefits of a transaction covered under clause 1, 2, 7th or 9th of section 122, subsection 1 of section 122. मतलब ये कौन से क्लॉजेस हैं? अगर आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए पर इनवॉइसेस नहीं दिए, या फिर इनवॉइसेस दे दिए विदाउट एक्चुअली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, और ऐसे केस में किसी ने अगर उस ट्रांजैक्शन का बेनिफिट रिटेन किया है, तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन कैन नाउ बी प्रोविजनली अटैच्ड, जब तक वो प्रोसीडिंग्स फाइनल नहीं हो जाती. चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड. देन वी हैव एन अपील सेक्शन ऑफ 107. अगर आपको किसी ऑर्डर की अगेंस्ट अपील में जाना है तो कुछ अमाउंट प्री डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है. क्या अमाउंट है? सबसे पहले तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया ये तो मेरी लाइबिलिटी है, तो जो आपने एक्सेप्ट किया है टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी एंड पेनल्टी इन फुल विच यू हैव एक्सेप्टेड, ठीक है, in full such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the imputed order as admitted by him. And in addition to that 10% of the disputed tax amount आपको प्री डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है in order to file appeal. ठीक है? Now in this budget a proviso has been added. क्या प्रोवाइजो ऐड हुआ है? अगर आपका कोई 129 सबसेक्शन 3 के तहत कोई डिमांड है, ना 129 इज रिलेटेड टू ई-वे बिल्स एंड डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. अगर कोई मूवमेंट है गुड्स का इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ, तो वहां पे गुड्स को डिटेन और सीज किया जा सकता है और उसमें पेनल्टी लगाई जा सकती है. तो सेक्शन 129(3) यानी कि अगर वहां कोई पेनल्टी लगाई गई है और उसके अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं, तो आपको पेनल्टी का 25% भी जमा कराना पड़ेगा, तब आप अपील कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल आप मानते हैं कि भैया ई-वे बिल के केस में नॉर्मली यही माना जाता है, या तो हम पूरी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं या हम पूरी लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, वी डिनाई. ठीक है, तो ऐसे केस में ये तो हुआ नहीं कुछ. 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट हमें जमा कराना है एंड 25% ऑफ द पेनल्टी वी हैव टू डिपॉजिट. ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब हम अभी नेक्स्ट में सेक्शन 129 डिस्कस करेंगे. देखिए 129 पे ही आ गया. यहां पे क्या कहा है इन्होंने, सेक्शन 129 एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं. सेक्शन 29 इज अबाउट डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर इन मूवमेंट इन ट्रांजिट. ठीक है, अगर यहां पे कोई मूवमेंट ऐसा पकड़ाई में आता है जहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या फिर द मूवमेंट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो ऐसे केस में गुड्स को डिटेन और सीज किया जा सकता है और पेनल्टी लग सकती है. वहां पे क्या अमाउंट था? इसमें दो चीजें थी, या तो ओनर सामने आ जाता है और क्लेम करता है दैट दीज आर माय गुड्स, या फिर ओनर सामने नहीं आता है टू क्लेम द गुड्स. ठीक है, तो क्लॉज ए है on payment of applicable tax and penalty equal to 100% of the tax payable on such goods. This was the position before budget 2021.
बजट 2021 में क्या किया है, एप्लीकेबल टैक्स को तो इन्होंने खत्म कर दिया, पेनल्टी को 100 से बढ़ा के 200% कर दिया। मतलब अब यहाँ पे टैक्स के नाम पे तो आपसे कुछ कलेक्ट ही नहीं किया जाएगा, ओनली 200% पेनल्टी कलेक्ट की जाएगी, 200% ऑफ टैक्स अमाउंट, वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच टैक्स एंड पेनल्टी। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से 100% की जगह 200% ऑफ टैक्स पेनल्टी हो गई। ओवरऑल देखा जाए तो अमाउंट सेम है, तो फिर फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, अगर आपको याद हो सेक्शन 17(5) में सेक्शन 129 का भी जिक्र किया गया है। 17(5) में ये कहा गया है, इफ एनी टैक्स इज डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 129 यू कैन नॉट क्लेम ITC ऑफ दैट टैक्स अमाउंट। तो अब अगर आपका ये B2B ट्रांजैक्शन है, राइट, अगर ये B2B ट्रांजैक्शन है, द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, ही विल नॉट बी एबल टू क्लेम ITC ऑफ द टैक्स अमाउंट। क्या हो अगर ये B2C ट्रांजैक्शन हो, सामने वाले को ITC लेनी नहीं है, तो मैंने टैक्स पे किया, पेनल्टी पे की और इस टैक्स को यूज कर लिया इन माय 3B, सामने वाले को ITC तो लेनी नहीं है। अगर आपने मैडम की स्पीच ध्यान से सुनी हो तो उन्होंने GST के बारे में सिर्फ एक लाइन कही, दैट वी हैव ट्राइड टू रिमूव द एनॉमलीज प्रेवलेंट इन द GST लॉ। दिस इन देयर व्यू वाज एन एनॉमली कि B2B में अलग इंप्लीकेशन हो रहा है और B2C में अलग इंप्लीकेशन हो रहा है। उन्होंने क्या किया, टैक्स को तो खत्म कर दिया, पेनल्टी 200% कर दी। अब चाहे B2B हो या B2C, दोनों केसेस में वही अमाउंट लगेगा। बट सेक्शन 17(5) हैज स्टिल नॉट बीन अमेंडेड। टैक्स तो फिर भी जमा होगा, इसी सेक्शन के तहत होगा और 17(5) में डिसअलाउ भी होगा। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, क्योंकि वो सिचुएशन तो वापस वहीं आ गई। B2B में तो सामने वाले को इनपुट मिल नहीं रही है और B2C में सामने वाले को इनपुट लेनी नहीं है। आई डोंट नो फ्यूचर में इसको, अभी सी दिस इज स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ अ बिल, इस पे डिस्कशन होंगे, फिर हो सकता है कुछ सजेशन आए, हो सकता है जब तक ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो उसमें कुछ और चेंजेस हो जाए। But as of now, what I can say, to remove one anomaly, they have created another one. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 129 में बहुत सारे चेंजेस हैं एंड द सेक्शन 129 हैज बीन redrafted in a sense. There is another clause B जहां पे the owner does not comes forward, where the owner of the goods does not comes forward for the payment. तो ऐसे केस में क्या था, एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब 50% CGST में और 50% SGST में, तो 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स के बराबर की पेनल्टी इसमें प्रपोज थी, क्योंकि ओनर तो सामने आया नहीं, करना क्या है, सारे के सारे गुड्स कन्फिस्केट ही तो करने हैं डिपार्टमेंट ने। तो यहां पे पेनल्टी वाज, और वो दैट पेनल्टी स्टिल होल्ड्स गुड। टैक्स अमाउंट को इन्होंने यहां से हटा दिया है, ठीक है, एंड दे हैव एडेड और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। या तो 200% ऑफ टैक्स अमाउंट और मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर, उतने की पेनल्टी यहां पे लगेगी। ठीक है, देयर आर सम अदर चेंजेस इन सेक्शन 129 एज वेल। Earlier, there was no time limit to issue order under section 129. This, I say, is a welcome change. अभी क्या किया है इन्होंने, the proper officer detaining or seizing goods or conveyances shall issue a notice within 7 days of such detention. शो कॉज नोटिस 7 दिन के अंदर अंदर आपको इशू कर देना है, ठीक है, और उस शो कॉज नोटिस के फर्दर 7 डेज के अंदर अंदर आपको ऑर्डर भी पास करना है, स्पेसिफाइंग द पेनल्टी पेबल एंड देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस। राइट, तो अब अभी तक क्या हो रहा था, कई बार
टैक्स पेयर्स को हरासमेंट भी होती थी कि भैया शो कॉज नोटिस दे दिया, गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है, ऑर्डर इशू नहीं हो रहा, गाड़ी कैसे रिलीज हो। बट नाउ देयर इज अ टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफिसर्स ऑल्सो कि आपको 7 दिन में शो कॉज नोटिस देना है और फर्दर 7 दिन में आपको उसका ऑर्डर भी करना है। सो दिस इज अ वेलकम चेंज। सेक्शन 129 में और भी चेंजेस हैं, जैसे मैं कह रहा था कि 129 हैज लाइक इट हैज बीन रीड्राफ्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। सेक्शन 129 सबसेक्शन 6 क्या कहता है? वेयर द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स और द ओनर ऑफ द गुड्स फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। अगर टैक्स और पेनल्टी का अमाउंट पे नहीं कर पाते थे विद इन 14 डेज, तो वहां पे सेक्शन 130 के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की बात थी। बट नाउ दिस लाइन हैज बीन ओमिटेड। यहां से सेक्शन 130 पे जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट्स ने पहले भी इंटरप्रेट किया हुआ है कि 130 एंड 129 आर नॉट इंटरलेटेड, नॉट नेसेसरली इंटरलेटेड। सेक्शन 139 की अपनी प्रोसीडिंग्स हैं, सेक्शन 129 की अपनी प्रोसीडिंग्स हैं, एंड दिस कंफ्यूजन हैज नाउ बीन डन अवे विद। और क्या कह रहे हैं? अब टैक्स तो खत्म ही कर दिया इन्होंने, सिर्फ पेनल्टी रह गई है। तो ये कह रहे हैं अब 14 को भी 15 कर दिया, एक दिन और बढ़ा दिया है, बहुत रहमदिली दिखाई है कि 15 दिन, ठीक है, 15 दिन के अंदर अगर आपने पेनल्टी जमा नहीं करवाई, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस इंटेंशन इज कमिंग। मेरे पास जब अपील करने के लिए सफिशिएंट टाइम है तो 15 दिन में मैं क्यों जमा करवाऊं? आई कैन ऑलवेज गो फॉर एन अपील। अभी तो हमने पढ़ा सेक्शन 107 में कि 25% पेनल्टी जमा करा के मैं अपील कर सकता हूं, और अपील करने के लिए 90 डेज का टाइम है। देन व्हाई आर दे आस्किंग फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी अंडर 15 डेज? आई डोंट नो व्हाई दिस प्रोविजन। They are saying where the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of penalty within 15 days from the date of receipt of copy of order, the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise। मतलब 15 दिन में पेनल्टी का पेमेंट नहीं हुआ तो गाड़ी और माल दोनों बेच दिए जा सकते हैं। See the level, I'm not able to even imagine the level of harassment a taxpayer will have to face। 15 दिन में पेनल्टी का पेमेंट नहीं होता है तो गाड़ी और माल दोनों बेच दिए जाएंगे, जबकि मेरे पास 90 दिन का समय है फॉर फाइलिंग एन अपील। एनीवे स्टिल ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अच्छा हम ट्रांसपोर्टर पे थोड़ा सा रहम खा लेते हैं, अगर वो 1 लाख रुपए जमा करा देगा तो उसकी गाड़ी छोड़ देंगे। Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under subsection 3 or 1 lakh rupees whichever is less। या तो भैया ट्रांसपोर्टर पूरी पेनल्टी जमा कराए या 1 लाख रुपए जमा कराए, नहीं तो हम तुम्हारी 15 लाख की गाड़ी खा जाएंगे। वाओ, I don't have words for this। So let us straight away move to section 130। 130 had an overriding effect over the act। Section 129 also had an overriding effect on the act। Now what they have done कि ये overriding effect इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। ये कह रहे हैं जहाँ पे ये इस तरह का contravention of law है and there is evasion of tax। One thing let me be very clear about this। Even the courts have decided कि section 130 के proceedings तभी initiate हो सकते हैं when there is an intention to evade tax। ठीक है, अगर कहीं ये प्रूव हो जाता है देयर वाज कि मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था टैक्स एवेजन का, तो 130 इन्वोक नहीं हो सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय हम्बल सबमिशन हियर इज, अगर किसी ट्रांजैक्शन में ई-वे बिल बना हुआ है, हो सकता है वो एक्सपायर हो गया हो गाड़ी के ब्रेकडाउन की वजह से, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, हो सकता है उसमें कुछ क्लेरिकल मिस्टेक रह गई हो, तो उन चीजों की वजह से सेक्शन 130 कैन नॉट बी इन्वोक्ड। अगर हमारा इंटेंशन टैक्स एवेजन का ही होता तो फिर हम ई-वे बिल बनाते ही क्यों? एंड वेरी क्लियरली कोर्ट्स हैव आल्सो प्रोनाउंस्ड दैट सेक्शन 130 कैन बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन देयर इज एन इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग मच इनटू डिस्कशन बिकॉज दिस वीडियो इज अबाउट द बजट चेंजेस ओनली। यहां पे इन्होंने ये ओवरराइडिंग इफेक्ट को खत्म करके सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया है वेयर एनी कॉन्ट्रावेंशन इज बीइंग डन,
the proceedings under section 130 can be initiated. फर्दर जो सेक्शन 129 में चेंजेस हुए हैं उसका जो रिजल्ट आना है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज आएगा इसी। यहाँ पे पेनल्टी लेवेबल अंडर सबसेक्शन 1 था, वो पेनल्टी तो अब 200% हो गई, ठीक है। पर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे हम आपसे 100% पेनल्टी ही लेंगे। पर अगर आप पूरे सेक्शन को पढ़ें तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट। Provided further that the aggregate of such final penalty leviable shall not be less than the penalty equal to 100% of the tax payable. और maximum कितनी है? Shall not exceed the market value of goods. मतलब 129 में भी पेनल्टी है, 130 में इट इज फाइन। आपके गुड्स क्यों ना कन्फिस्केट कर लिए जाएं, कन्फिस्केशन के बदले में आपसे फाइन लिया जाएगा और वो फाइन कैन बी मैक्सिमम अप टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड मिनिमम शुड बी 100% ऑफ टैक्स अमाउंट। सो if you have to save your client, if you are a professional, you have to save your client from section 130, try to prove that there was no mala fide intention to evade tax. Okay, next section 30 में एक subsection 3 भी था which has been omitted. Again I will repeat all these provisions except section 7 का amendment और section 50 के proviso का amendment, ये दोनों रेट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई से आए हैं। बाकी सबके लिए अ डेट विल बी नोटिफाइड, वो कहां से इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। देन आईजीएसटी के सेक्शन 16 में भी देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज। सेक्शन 16 कवर्स अबाउट द जीरो रेटेड सप्लाई। यहां पे एक सबसेक्शन 3 था which used to say about if that an exporter can export goods or services after filing LUT or without filing LUT। मतलब अगर आप LUT फाइल करते हैं तो without payment of tax you can export and then you can claim refunds of your unutilized ITC. If you are going without LUT, अगर आप LUT के बिना जाते हैं then you pay the IGST amount, utilize your ITC and claim refund of entire output tax। उसको खत्म कर दिया, ठीक है। डोंट बी सरप्राइज्ड, सिमिलर प्रोविजंस हैं बट विद अ ट्विस्ट। एक ये छोटी सी चीज यहां पे भी है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या यूनिट के लिए अब सिर्फ ऑथराइज्ड ऑपरेशंस को ही जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा, सबको जीरो रेटेड नहीं माना जाएगा। थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। A registered person making zero rated supply shall be eligible to claim refund of unutilized input tax credit on supply of goods। ये वो LUT वाला सेम आ गया, LUT वाला एज इट इज। उसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोवाइजो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अगर वो आपका रियलाइज नहीं होता है टाइमली तो जो आपने रिफंड लिया है उसको रिफंड करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू पे बैक योर रिफंड अमाउंट along with interest under section 50, provided that the registered person making zero rated supply of goods shall, in case of non realization of sale proceeds, be liable to deposit the refund so received under this subsection along with the applicable interest under section 50। कब? अगर आपने LUT यूज करते हुए एक्सपोर्ट किया है और आपके सेल प्रोसीड्स टाइमली नहीं आते तो विद इन 30 days यू हैव टू डिपॉजिट द रिफंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और टाइम लिमिट किस में दी रखी है? टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर फेमा, ठीक है। तो जो पहले सबसेक्शन 3 था जिसमें बहुत सिंपली 2 चीजें लिखी थी, उसमें से जो LUT वाला पार्ट था उसमें एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया, और जो विदाउट LUT वाला प्रोवाइजो था, मतलब यू कैन पे टैक्स एंड क्लेम रिफंड, वहां पे भी एक बहुत, हालांकि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो इट इज अ वेलकम चेंज, क्योंकि कई जगह पे फेक इनवॉइसेस की ITC को भी यूटिलाइज करके देवर क्लेमिंग रिफंड।
But now the government wants to put a bar on those fake invoices, और उसी वजह से एक और ये अमेंडमेंट IGST सेक्शन 16 में लाए हैं. Here the government may, on the recommendation of the council and subject to such conditions, safeguards and procedures by notification, specify a class of persons who may make zero rated supply on payment of integrated tax and claim refund of tax so paid. मतलब हर किसी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. अब सिर्फ सिलेक्टेड क्लास ऑफ पर्सन्स कैन गो एंड अवेल दिस ऑप्शन. Further, the class of goods or services will also be prescribed which may be exported on payment of integrated tax, and the supplier of such goods or services may claim refund of tax paid. Right? So this is all about the proposed changes in GST law by budget financial year 21-22, जिसमें 2 major changes have been implemented retrospectively from 1st of July 2017, and remaining changes a date will be notified कि वो किस दिन से applicable होंगे. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you have any queries or suggestions, please write in the comments, and you can also mail us on the email ID provided. Thank you so much for watching.